Good morning, student. Once again, welcome back to our online classes. Student, from past few classes, we have discussed the Great Train Journey, Part 1, Part 2 and Part 3. Now today I am going to explain its last part. Earlier you have read in this chapter that Suraj was boarding on a train. The train was a goods train, and the train was moving very fast, and suddenly at a place the train stopped, and the person who was in the railway carriage with the Suraj, he jumped from the carriage and ran away into the jungle. Now Suraj Suraj did not have any tickets, and he was thinking about that कि if what will happen if anyone will catch him. Now let's start. Suraj waited until the man had gone away before coming down from the track. After about 5 minutes, the train started again. It shunted up and down. They gathered speed and went rushing across the plain. 5 मिनट के बाद आपने पढ़ा था कि कुछ लोग आए और उसमें से सेब का वो कैरेट थे वो सारे निकाल ले गए. 5 मिनट के बाद जब सारे लोग चले गए और फिर से ट्रेन स्टार्ट हुआ और फिर वो ट्रेन अप एंड डाउन करते हुए फिर प्लेन मैदानों से होते हुए फिर गुजरने लगी, यानी कि चलने लगी. Suraj felt a thrill of anticipation. Where could they be going now? He wondered what his parents would do when he failed to come home at night. They would think he had run away or been kidnapped or being involved in an accident. They would have the police out of there, would be a search party. Suraj would be famous, the boy who disappeared. सूरज अब थोड़ा सा काफ़ी नर्वस फील कर रहा है और वो थोड़ा सा डर भी रहा है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है और मैं कहाँ जाऊँगा, और जब मैं रात को घर नहीं पहुंचूंगा तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे. वो सोचेंगे कि या तो मेरा किडनैप हो गया या मैं घर से भाग गया, मेरा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया. फिर वो हो सकता है वो पुलिस स्टेशन जाए, रिपोर्ट कराएं, और फिर सर्च पार्टीज निकलेगी और पुलिस मुझे खोजेगी और मैं बहुत ही फेमस हो जाऊंगा. The train came out of the jungle and past fields of sugarcane and village, and emerged. Herds, children shouted and waved the trains, though no one was in except Suraj, the guard and the engineer driver. Suraj waved back. Usually he was in a field waving. Today he was actually on the train. अब ट्रेन जंगल से होते हुए वापस आ रही थी, और साइड में जो जंगल के साइड में घर थे वो मडी की वो बने हुए थे, मिट्टी के घर बने हुए थे. जो बच्चे थे वो ट्रेन को देख के वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, और उस ट्रेन में सिर्फ इंजन ड्राइवर था और गार्ड था और इवन सूरज था. सूरज भी उनको वापस रिप्लाई दिया, जो कि हमेशा खुद वो करता था, आज वो खुद ट्रेन में बैठा हुआ है. He was beginning to enjoy the ride. Then train would take him to the sea. There would be ship with funnel and ship with sail, and might even be one to take him across the ocean and some distant land. He felt a bit sorry for his mother and father. They would miss him. They would believe he had been lost forever. But one day fortune made he would return home, and then nobody would care any more about school reports and what he ate and why he came home late. शुरू में वो इस राइड को काफ़ी इंजॉय कर रहा था और ये सोच रहा है कि ये ट्रेन मुझे समुद्र के पास ले जाएगी, फिर मैं वहाँ से नाव के बोट के जरिए समुद्र पार कर जाऊँगा और काफ़ी लंबा दूर तय करूँगा, फॉरेन कंट्रीज़ घूमूँगा, और फिर मेरे फैमिली मेम्बर जो है, मेरे पेरेंट्स काफ़ी दुखी होंगे कि मैं कहाँ चला गया, मुझे मिस करेंगे. लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं फिर बड़ा होकर वापस आऊँगा, तब मुझे कोई रिपोर्ट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना होगा, ना ही कोई मुझे पूछेगा कि आप लेट क्यों आए, आपने खाना खाया या नहीं. ये सारी चीज़ें तब होंगी. Ranji would be waiting for him at the station, and Suraj would bring him back a present, an African lion, perhaps, or a transistor radio. But he wished Ranji was with him now. He wished to rag happy was still with him, and adventures was always more fun when one and had company. कहते हैं कि वो सोच रहा है कि रंजी मेरे लिए क्या करेगा, स्टेशन पे मेरा वेट करेगा, और जब मैं वापस आऊँगा फॉरेन से घूम के तो उसके लिए वो ले आऊँगा, गिफ्ट ले आऊँगा. गिफ्ट में क्या, अफ्रीकन लॉयंस वगैरह ले आऊँगा उसके लिए स्टेशन पे. लेकिन फिर सूरज सोचता है कि काश कितना अच्छा होता कि अगर रंजी भी मेरे साथ होता तो मज़ा ही आ जाता. He had finished both apples by the time the train showed a sign of reaching another station. This time it seems to be moving into the station itself, not just siding. It's past a lot of signals and buildings and advertisement boards before showing to a halt beside a white family platform.
कह रहा है कि अब क्या हुआ कि उसने अपने दोनों एप्पल जो पॉकेट में रखे तो वो फिनिश किया, और तब तक ट्रेन दूसरे स्टेशन पे पहुंचने वाली थी। कई सारे पोल्स को पार किया और एडवर्टीजमेंट बोर्ड से उसको पार करते करते एक साइड में आने लगी एक प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी फेमिलियर था सूरज के लिए। सूरज लुक आउट द डोर एंड कॉट साइट ऑफ द बोर्ड बियरिंग स्टेशन नेम। ही वॉज सो अस्टोनिश्ड दैट he almost fell out of the compartment. He was back at his hometown after traveling 40 or 50 miles. Here he was home again. सूरज ने दरवाजे से बाहर देखा और बोर्ड्स को पढ़ा और स्टेशन का नाम पढ़ा। वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वो जिस कंपार्टमेंट था और वो जो ट्रेन थी वो वापस से चली आई थी 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करके। वापस से वो उसी जगह आ गई थी जहाँ से वो बैठा था, यानी कि वो अपने फिर होम टाउन ही आ गया था, अपने घर पे ही आ गया था। He could not understand the train had not turned, of that was certain, and he had not been moving backward or his curtain had to. He climbed out of the compartment and looked up down the platform. Yes, the engine had changed ends. It was only the local Apple train. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रेन तो पीछे हुई, रिवर्स में आई नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब उसने कंपार्टमेंट के बाहर अपना सर करके देखा, उसने देखा कि इंजन चेंज था और वो ट्रेन जो थी वो वापस उसके घर पे आ गई थी, और मीन्स होम टाउन आ गई थी। दैट वाज अ लोकल एप्पल ट्रेन। वो लोकल एप्पल ट्रेन थी जो 50-40 किलोमीटर की दूरी में एप्पल्स को भेजती थी, ले जाती थी। Suraj glowered angrily at everyone on the platform. It was though the rest of the world had played a trick on him. सूरज जो जितने लोग भी प्लेटफॉर्म पे थे सबके ऊपर गुस्सा करता है। ऐसा लगता है कि उन सब लोगों ने उसके साथ एक ट्रिक खेला, उसके साथ मजाक किया। He made his way to waiting room and slipped into the street through the back door. He did not want a ticket collector asking him awkward questions. It had been a free ride, and what with that he comfortable himself, shrugging shoulders, Suraj sauntered down the road to the bazaar. उसके बाद वो वेटिंग रूम से स्लिप होते हुए वो सीधा स्ट्रीट की तरफ पहुंचा, जहां बैक डोर से। वो ये नहीं चाहता था कि टिकट कलेक्टर उसको मिले और उससे क्वेश्चन पूछे, और उसको वो फ्री राइड कर किया था उसने, ट्रेन में बिना पैसे दिए काफ़ी घुमा था, वो इन्जॉय किया था, और फिर अपने कंधों को मोड़ते वगैरह हुए वो डायरेक्ट बाजार में आ गया। Someday he thought he had take a train and really go somewhere, and he buy a ticket just to make sure of getting there. सोच रहा है कि वो कभी किसी एक ट्रेन लेगा और अपना टिकट लेगा और तब वो घूमने जाएगा, ताकि ये श्योर रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग एवरीवेयर, ही सेड फायरसली, आई एम गोइंग एवरीवेयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी। उसने कहा कि मैं अब हर जगह, फर्स्टली बोला कि मैं हर जगह जाऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता।